अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस के पास। ह्यूमन राइट्स के उस इश्यूज इतने रैम्पेंट तो नहीं है हमारे सामने, तो एटलीस्ट यही इमेज शो की गई। लेकिन सर जो रिफॉर्मेशन का पर्सपेक्टिव है वो टू सम एक्सटेंट रीच नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको गोल को कैसे, कंफ्लिक्टिंग गोल को कैसे मैनेज कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के साथ? कोई एडवाइजरी गाइडलाइन आने की थैलेसीमिया बच्चों को प्रायोरिटी मिले या पेशेंट्स को या चिल्ड्रन को पहले प्रायोरिटी मिल जाए ब्लड बैंक को। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी में बैठे हैं, 6 घंटे से बैठे हैं, 2-2 लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई? We are privileged to with us Honorable Jitendra Singh Shanti ji, Padam Shri. Let's facilitate him first. Welcome, sir. It is my privilege here today to introduce a remarkable humanitarian, social worker and public servant, Padam Shri Shri Jitendra Singh Shanti. A man whose life has been dedicated to service, Padam Shri Shri Shanti has founded the Shaheed Bhagat Singh Seva Dal in 1996 and spent decades working relentlessly for the service of humanity. His commitment to public welfare led him to public life, where he served as a councillor and later represented Shahadara constituency in Delhi Legislative Assembly. However, what truly distinguishes him is his extraordinary spirit of service. He became the first Sikh to donate blood more than 106 times, and his contributions have earned him numerous recognitions, including Centurion Award and World Book of Records distinction for blood donation. During COVID-19 crisis, when nation faced one of its most challenging periods, Padam Shri Shri Shanti stood at the forefront of humanitarian efforts, extending help to those who in need. His recognition in exceptional services has earned him the prestigious Padam Shri in 2021, which he humbly dedicated to his fellow frontline workers. Please join me in welcoming a man whose life embodies compassion, courage and self-service, Padam Shri Shri Jitendra Singh Shanti. We are truly honoured by your presence, sir. पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यालय में देश के कोने कोने से आए हुए सभी वो छात्र छात्राएं जिनको बहुत उत्सुकता है कि मानव अधिकार क्या होते हैं, उसका कुछ ज्ञान पाने ही तो आए ना आप। और मुझे लगता है 1.5 डे आपकी क्लास हो भी चुकी है। और रोहित सर हमारे एक ऐसे सर हैं जो ज्ञान का सागर हैं, इसमें इनको बहुत नॉलेज है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, और उन्होंने पता नहीं हज़ारों बच्चों को मानव अधिकारों के बारे में बताया। अब 1.5 दिन में क्या बताया और आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, और इससे पहले आने से पहले भी आपने कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लिया होगा। गूगल का ज़माना है, गूगल बाबा कुछ भी बता देता है। इससे अच्छा कि मैं ज़्यादा बोलूं, शेयर करेंगे हम आपस में। मानव अधिकार में क्या क्या आता है, आप में से कौन सा बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएंगे, और उसका पीरियड बोलने का जो होगा 1 से 1.5 मिनट होगा। हाथ खड़ा करिए, बताइए क्या क्या आता है मानव अधिकार में। बोलो बेटा। Good morning, sir. I'm Akshata. So, human rights basically are those rights which we have as a human. So, these rights are inherent, which means we get them by birth, and they are inalienable, and they are universal rights, which means they are provided to all the citizens, to all the people over all the world, throughout the world. And this basically includes the basic rights such as right to life, liberty, freedom, equality, and those rights. कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे देश के मानव अधिकार के अंदर आते हैं, आयोग के अंदर? Firstly, the Human Rights Commission, National Human Rights Commission, which is situated at Delhi. नेशनल और स्टेट ऑफ रूल सेम है। And State Human Rights Commission. स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं जिनके ऊपर हम लगाम लगा सकते हैं? क्या लोगों को उससे सुविधा दिला सकते हैं?
basically the departments which include public services. Like for example, if somebody's right has been violated by a public servant, so they can appeal to the Human Rights Commission. Which like public service? For example, like if I am being discriminated against by any public servant, or like if something happens with me, if I had been harassed and I report to a police commissioner. कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक कार्यालय हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके ऊपर हम न्याय दिला सकते हैं लोगों को? कुछ 2-4 डिपार्टमेंट का नाम बताइए. So the government departments like Department of Which Health, type? कौन कौन से कौन? Department of बहुत बढ़िया है. Health, Department of Education, and Department of Social Welfare, Department for Women Help and Child Welfare, and चलो इसे शॉर्ट में करते हैं. बहुत अच्छा बोले आप, थैंक यू वेरी मच. thank you, sir. इस बच्चे के लिए क्लैपिंग तो हो गया. जीवन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमारे साथ जो दिनचर्या से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है. स्वच्छ पानी मिलना, स्वच्छ हवा मिलना, रास्ता मिलना, हरियाली मिलना, सड़क अच्छी मिलना, ये सारे हमारे अधिकार हैं. कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें आते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था? सबसे पहला तो जहाँ लोगों को जल्दी से न्याय नहीं मिलता है, जस्ट लाइक पुलिस डिपार्टमेंट. वहाँ हम अपनी कोई शिकायत लेके जाते हैं तो वही घिसे पिटे 4-5 सवाल होते हैं, लोग धक्के खाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, 156(3) लगाते हैं, तब भी FIR नहीं होती. ये मानवाधिकारों का हनन होता है. पुलिस के अलावा हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं तो उनको सुविधा नहीं मिलती है, प्राइवेट में जाते हैं तो पहले वो पैसों का बताते हैं कि कितने पैसे दोगे आप, बोल भाव शुरू हो जाता है. इसी प्रकार स्कूलों में एक तरफ तो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही बेटी जब कहीं पर एडमिशन लेने जाती है या तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं या मना कर दिया जाता है कि सीट नहीं है. ये मैं वो चीज़ें बताता हूँ जहाँ आपका हक बनता है और आपको छीन के लेना है वो हक, चाहे बच्चे हैं चाहे बच्चियाँ हैं. अगर कोई व्यक्ति जेल में चला गया किसी भी केस में, वो सही है गलत है तो बाद में घोषणा होगी, एक्यूज्ड है वो, लेकिन वहाँ जेल के अंदर भी उसको पानी साफ मिलना चाहिए, पीने का अधिकार है उसका, बिस्तर मिलना चाहिए, रोटी अच्छी मिलनी चाहिए, मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, वॉशरूम अच्छे होने चाहिए. ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी आवाज़ अगर किसी ने उठाई हमारे देश में, जेल में बैठ के, बताओ किसने उठाई थी? बोलो बोलो. यस, शहीद आजम भगत सिंह जी ने. ताली बजाओ यार इसके लिए. अच्छा बोला. आवाज़ क्या उठाई थी कि जेलों में अक्सर गंदा खाना देते थे ब्रिटिश टाइम में, उसमें कंकर भी होते थे, पानी पानी देते, दाल क्या निकलती थी, पानी होता था सारा. मकसद ये था कि तड़फाओ इनको, जान की गंदी रोटी देते थे कि बीमार हो जाए मर जाए. तो भगत सिंह जी ने वहाँ से एक नारा दिया कि खाना वही खाएंगे जो इंसानों को दिया जाता है, दवाई भी लेंगे अखबार भी लेंगे, हमारा हक बनता है ये. भगत सिंह जी के साथ पूरी टीम थी उनकी, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, जतिन दा. को बता सकते हैं कितने दिन ये हड़ताल चली होगी, भूख हड़ताल, जिसको वो बड़ा इजी ले रहे थे अंग्रेज भी, यार 2-4 दिन में टूट जाएंगे ये. बच्चे हैं 20 साल के, 21 साल के. कोई आइडिया लगा सकता है? चलो तुक्का मारो. चलो अच्छा बताओ कितने दिन की भूख हड़ताल कर सकता है कोई, बताइए.
बोलो बेटा, कोई किसी को बता दो। More than 3 months. हाँ बेटा, More than 3 months. मोर देन 3 months. और ज़्यादा 6 months. 123 दिन, 123 दिन भूखा रहना मजाक नहीं है। 66 दिन के बाद एक साथी उनका शहीद हो गया था जेल में, उसका नाम था जतिंदा। तो एक मिसाल बनी कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और ह्यूमन राइट की आवाज़ उठाने वाले भगत सिंह जी को जीत मिली इसमें। इसे कहते हैं मनुष्य अधिकार। तो पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन जहाँ आप आए हैं, यहाँ से अगर 4 बातें भी सीख के ना गए तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? ये बताइए 79 लोगों में से कि वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड करती हैं? हाँ जी, सर कोई कंट्री मतलब ब्लड को नहीं बनाती सर, वो नहीं। कोई कंट्री नहीं है। हाँ जी, कोई सहमत है इनसे? हाउ मच कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड? नो कंट्री इन द वर्ल्ड। जो बच्चे ने कहा इसके लिए ताली बजाइए आप। 2 जगह से इंसान को रक्त मिल सकता है, या ईश्वर से या इंसान से, बीच में कोई जरिया नहीं है। इसके लिए मैंने एक स्लोगन लिखा था कभी ज़िंदगी में, वो लिख लेना, बहुत काम आएगा आपके। कोटेशन है ये कि रक्त दाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता, बीच में कोई जरिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति 16 साल से 62 साल के बीच में जिसका वजन 50 किलो से ज़्यादा हो, हीमोग्लोबिन उसका 12 से ज़्यादा हो, साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। और 1 बार ब्लड देने से 3 लोगों को उस जान बच सकती है। उसमें से 3 अलग अलग, FFP अलग, प्लेटलेट्स अलग, ब्लड अलग, ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। मैं मानता हूँ कि ये ह्यूमन राइट की बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि किसी को जीवन को बचाने के लिए अगर आपको ये पता ही नहीं है, अभी तक किसी में से, इनमें से कितने बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फ़ायदे बता दो ब्लड डोनेट करने के क्या है। इंसान चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, 5 लीटर खून तो उसमें है ही है। सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो लगातार खून को डोनेट करता है, उसकी जो ध्वनियाँ हैं, यानी जहाँ से खून सर्कुलेट होता है, वो अपने आप साफ़ होती रहती है। उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब फिट रहता है एकदम से। जान तो आप किसी की बचाते हैं, लेकिन लगातार ब्लड डोनेट करने वाला व्यक्ति को हार्ट अटैक जल्दी नहीं होता है, क्योंकि जो कहते हैं ना खून के थक्के जम गए हैं, एक फ्रेश हो जाता है बंदा खून देने के बाद, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसे लगता है आज मैं को बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। इसलिए ब्लड डोनेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। किसी के मन में कुछ जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहें, ज्ञान देना चाहें या लेना चाहें, या हो सकता है कुछ टॉपिक आपको जुड़ गया हो इसमें। Sir, it's a privilege having to be your audience. It's genuinely a privilege. Sir, my question is कि मैंने अपनी पिछली इंटर्नशिप स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ लगाई थी, and we visited jails as well, जुवेनाइल जेल, मॉडल जेल. So sir, हमने नोटिस किया कि फैसिलिटीज़ हैं बिजनेस के पास, ह्यूमन राइट्स के उस इश्यूज इतने रैम्पेंट तो नहीं है, हमारे सामने तो एटलीस्ट यही इमेज शो की गई। लेकिन सर जो रिफॉर्मेशन का पर्सपेक्टिव है वो टू सम एक्सटेंट रीच नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको गोल को कैसे, कंफ्लिक्टिंग गोल को कैसे मैनेज कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के साथ? देखिए, जेल का मकसद और सज़ा का मकसद ये नहीं है कि उसको अंदर हमको पुनिशमेंट दें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनको वहाँ सुधार क्या हुआ है, ठीक। इस बात को देखने के लिए मैंने बताया कि मैं बहुत सारी जेलों में गया हूँ और वहाँ से बहुत कुछ देख के आया हूँ। अभी मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, एक बच्ची मिल गई मुझे संगरूर जेल में, 24 साल की लड़की थी बच्ची, वो इंजीनियरिंग करी हुई है उसने। उसने बताया कि मेरे सारे शरीर के अंदर देखो सुइयों के निशान है, मैं नशा लेती हूँ। मैंने कहा इतनी छोटी उम्र में? कहती है मैं 16 साल की उम्र से ले रही हूँ।
और हम 18-20 बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने गांव की या दाएँ बाएँ की जो मिल के सारे नशा करते हैं हम। उसी ने कहा मुझे कि मैं आ तो गई हूँ, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, मुझे पुलिस ले आई है, मैं यहाँ पे बंद हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इलाज मिलना चाहिए, कोई उसको काउंसलिंग करे वहाँ पे, कोई उसको उस प्रकार की दवाई दे। अगर फिर नशा दे के ही छुड़वानी है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे डी एडिक्शन सेंटर में भी अगर कोई बड़ा नशा करता है उसको छोटे नशे की गोली दी जाती है। अब हुआ क्या, अब वो गोलियाँ ब्लैक में बिकने लगी, लोग 50-50 गोलियाँ वही खाने लगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मेरी तरफ से उसका आंसर ये है कि वो जेल नहीं है, सुधार गृह है, तो वहाँ पर उसी प्रकार के इंतज़ाम होने चाहिए। और उनका मन बहलाने के लिए, चाहे वहाँ कोई अच्छी गेम्स हों, वहाँ कई कॉलेज, कई जेलों में मैंने देखा है ITI खुली हुई है अंदर, आप अंदर ही कुछ सामान बना सकते हैं, अंदर बेकरीज खुली हुई हैं अंदर देखने के लिए। तो आपका सवाल बिल्कुल सही था। आप में से और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? बड़ा अच्छा दिमाग वाली बात करी इन्होंने, सोच के करी, मेरे को अच्छा लगा बहुत। मेरे को, मैंने तो यहाँ तक देखा कि बठिंडा जेल में 5 महिलाओं ने जेल के अंदर बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि जब वो नशे बेचते हुए पकड़ी गई, NDPS एक्ट जो होता है, दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। और बच्चे अंदर गए हुए, पैदा हुए, और बच्चे 5-5 साल के हो गए। अब देखा जाए तो बच्चों का क्या कसूर है यार, वो क्या याद रखेंगे कि हमने, तो फिर हमने उस पर अपने यहाँ से एडवाइजरी बना के भेजी है कि उन बच्चों को पहले क्रैच में रखा जाए, फिर उनको स्कूल भेजा जाए और माँ से अलग किया जाए किसी भी हालत में। वो जेल में रह रहे हैं तो उनको वहाँ पे वैसे ही एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसको हर हालत में चेंज किया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि उसका जवाब आ गया है कि 5 बच्चों को क्रैच में भेज दिया गया है, उनका जीवन सुधर जाएगा इस बात को लेके। ये मैं देखता रहता हूँ इन चीज़ें सारी जाके। या वहाँ गए तो हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है जेल के अंदर, डॉक्टर है तो एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है आपस में, जो मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया किसी का? हाँ बेटा कुछ? आपने सर जैसे बात की ब्लड के लिए, सर मुझे बड़ी खुशी, किसी ने ब्लड डोनेशन के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में बात की। सर भी मेरी खुद की सिस्टर है, उससे थैलेसीमिया है, तो मतलब उसको ब्लड बनता नहीं है उसका, तो हमें उसको 15 दिन में, 1 महीने में ब्लड चढ़वाना पड़ता है 1 यूनिट। तो आजकल जैसे ड्रग्स बहुत हो गए हैं, यूथ में अवेयरनेस, 70 में 11 बच्चे जिन्होंने ब्लड दिया है ना, तो मतलब ब्लड की बहुत शॉर्टेज आ जाती है। सर जैसे आप इतना कुछ करते हो सर कमीशन में, जैसे एक तो हमारे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ थोड़े थैलेसीमिया के केसेस ज़्यादा हैं। तो सर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, हमारे पंजाब में एक पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल, चंडीगढ़ का PGI, एक लुधियाना का DMT, सर ये सिर्फ 3 यूनिट्स हैं जहाँ पे थैलेसीमिया का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सर एक तो कोई थैलेसीमिया यूनिट नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ गई सर, क्योंकि जैसे हम DMC जाते हैं ना ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ देखते हैं बच्चे अमृतसर से भी आ रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को अर्जेंट अटेंशन चाहिए होती है। तो सर एक तो ऐसा कोई ब्लड के लिए आए कि अब हमारे वहाँ पे पता है कैसे DMC में कहते ब्लड की शॉर्टेज है, डोनेशन ब्लड डोनर लेकर चलो हम ले जाते हैं, सब हो जाता है, कहीं ना कहीं उन बच्चों को ब्लड नहीं मिलता, जिससे डिले हो जाता है। सर अगर कोई ऐसा ब्लड, जैसे कोई एडवाइजरी गाइडलाइन आ जाए कि थैलेसीमिया बच्चों को प्रायोरिटी मिले, या पेशेंट्स को या चिल्ड्रन को पहले प्रायोरिटी मिल जाए ब्लड बैंक के ऊपर, या कोई ऐसा सरकार सॉफ्टवेयर कर दे, कभी क्या होता है जैसे AB नेगेटिव हो गए, O नेगेटिव हो गए, ये ब्लड्स ना मिलते नहीं। तो अगर हम नेट पे चेक कर लें कि हमारे आसपास के हॉस्पिटल में हाँ इतने यूनिट पड़े हैं, तो हम ये मिल सकता है यहाँ है। कभी बार देखता हम, चलो डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया से पोस्ट वगैरह डल जाते हैं कि ब्लड चाहिए, तो सर ऐसी कोई गाइडलाइन आ जाए। और जैसे सर इन बच्चों की जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना फ्री मिलती हैं, बट सर इसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया इन बच्चों की, मतलब 20,000 की मेडिसिन होती हैं सर, इनको मिल नहीं पाती, या डॉक्टर्स अभी इतने अच्छे ट्रेंड नहीं है। PGI में सर मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, जिंद्रा में ब्लड कंटेमिनेशन आ जाती है। आपका पेशेंट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? सर हमारा, सर हम वैसे फतेहगढ़ साहब रहते हैं, लुधियाना से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर फतेहगढ़ साहब मंडी गोविंदगढ़ से। मंडी गोविंदगढ़ फतेहगढ़ साहब। बैठ जाइए। इस बीमारी को कहते हैं थैलीसीमिया। हमारे देश में 0.9% थैलीसीमिक बच्चे पैदा होते हैं,
0.9% हमारे देश में थैलीसीमिक बच्चे पैदा होते हैं। थैलीसीमिक बच्चे उसको कहते हैं जिनका खून का प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता है। खून कैसे बनता है देश में, समझ लीजिए बात आप। देश में सॉरी नहीं, हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर में पहले एक लिक्विड होता है, उसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड करता है। नोट करो ये बात को, बोन मैरो प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड करता है। जिस बच्चे के बोन मैरो काम नहीं कर रहा है, जिस बच्चे का बोन मैरो काम नहीं कर रहा है, उसका ब्लड अगर 100 सीसी बनना है तो 100 सीसी बनता है, सॉरी 1000 बनना है तो 100 बनता है। उस बच्चे की निशानी क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। वो बच्चा लेज़ी रहेगा, वो बच्चा पढ़ने भी जाएगा सो जाएगा, खेलने नहीं जाएगा सो जाएगा, अजीब ही उसके आपको नज़र आएगा। कई बार लोग 10-10 साल तक बच्चे को टेस्ट ही नहीं कराते, उनको पता ही नहीं लगता कि थैलीसीमिक है मेरा बच्चा। और सच बोलूँ तो एक शराब है ये बहुत बड़ा, क्योंकि जिस घर में ये बच्चा हो गया, कईयों को तो हफ्ते में 1 बार, कईयों को महीने में 6 बार, पहले तो माँ बाप खुद देते हैं बेचारे, फिर टूट जाते हैं, लेकिन अब सोसाइटीज़ बना दी हैं। बेटा एक वर्ड नोट कर लेना आप अपने लिए, जो आपको नाको, NACO, ये देश की सबसे बड़ी संस्था है ब्लड के लिए। नंबर 2, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल, ये हेड है इसकी, पूरे देश के ब्लड बैंक्स की। ठीक, अब समझ लीजिए बात आप। किसी भी हॉस्पिटल में इनको खून लेने का पैसा नहीं लगता है, ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, क्योंकि उनकी दुकानें हैं बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ आपको नहीं जाना है। जैसे कहाँ बताया था, कहाँ रहते हैं? मंडी गोविंद। सबसे नज़दीक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहब। वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, हम आपके वहाँ से टाई अप करा देंगे। एक चवन्नी भी नहीं देनी है उनको, और हॉस्पिटल वालों को उनको लॉन्ग लाइफ ऐसे बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और उनका बाकायदा एक रूम बना होता है थैलीसीमिक बच्चों के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से थोड़े बहुत इलाज आए हैं बोन मैरो के, अब पहले क्या इनकी लाइफ नहीं, आपको पता नहीं है, इसकी लाइफ 12 साल थी कुल बच्चे की, फिर 14 हुई, फिर 16 हुई। अब ऐसे बच्चे पढ़ लिख के IAS तक बने हैं, ऐसे बच्चे पढ़ लिख के प्लेयर बने हैं, क्योंकि अब उनको उनके जीवन, उनके अंदर जब से बोन मैरो इन्होंने ट्रांसप्लांट करना शुरू किया है, धीरे धीरे उसमें काफ़ी प्रगति है, पूरी नहीं है पर अभी, लेकिन अभी भी लाखों की तादाद में बच्चे हैं। मुझे इनकी बहुत नॉलेज है इसकी, मेरे कई जानकारों के बच्चे चले गए इसमें। तो आप इन 2 जगह का नाम सर्च करके, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल है जो, ये तब यूज़ करेंगे जब आपको कहीं ना मिले, ये आपको एजेंसियाँ बता देंगे आगे आगे। लेकिन मेरे पास यहाँ की पंजाब की 1-2 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने क्लब बनाया हुआ है, जिनके पास बहुत डोनर हैं, 1000 तक, 2-2000 तक। आप हमारा नंबर, उनका नंबर मेरे से ले जा सकते हैं। और वैसे तो आजकल मैं सच बोलूँ, मैं पंजाब सारा घुमा हूँ, जैसा बताया इन्होंने, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ अवेयरनेस है लोगों में, बाकी इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं ब्लड डोनेट होता है वो केरला में होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लेडीज़ भी ब्लड डोनेट करती हैं हर 3 महीने के बाद। साउथ इंडिया में ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। दिल्ली में बहुत कम है, दिल्ली में 4 लाख यूनिट चाहिए होता है महीने में, लेकिन 2 लाख यूनिट इकट्ठा होता है, बाकी सब वॉलंटरी कराते हैं इधर उधर से। तो आपका क्वेश्चन अच्छा था। कोई भी आपके दिमाग में बाद में क्वेश्चन आ जाए तो आप रोहित जी के थ्रू पूछ सकते हैं, हमें मिल भी सकते हैं, आगे ऊपर ही बैठता हूँ मैं 2nd फ्लोर पे। मुझे आपसे मिलके बहुत 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 खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं जोर से। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन के हमारे कार्यालय में देश के कोने कोने से, खास करके पंजाब से ज़्यादा है वैसे तो, बाकी राजस्थान, हरियाणा, डिफरेंट, हिमाचल, डिफरेंट तरीके से, अलग अलग स्टेट से, मुझे खुशी है कि बच्चों के अंदर एक क्रेज़ है कि ह्यूमन राइट क्या होता है ऐसा कुछ। क्योंकि जिस प्रकार आज से कुछ साल पहले ज़्यादातर बच्चों को तो, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा,
मानव अधिकारों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक एडवोकेट भी बनना है अच्छा, तो अगर आपको मानव अधिकार पता है तो आप अच्छी तरह से लड़ सकते हैं उसके लिए। तो मुझे खुशी है कि इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने पिछले 4-5 दिन से हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के ऑफिस में 34 सेक्टर 34 ए में चंडीगढ़ में आके हमारे कार्यालय में हमारे जो रोहित चतर साहब हैं, जो हमारे सारा सोशल मीडिया भी देखते हैं और लेक्चर भी बहुत अच्छा देते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और इनको ज्ञान दिया है कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, फिर प्रोसेसिंग ऑफिस में कैसी होती है। मुझे लगता है कि जो चीज़ बहुत लोगों ने आज तक सुनी भी नहीं होगी वो इन्होंने आज सीख ली। बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगा कि जब कोई केस हमारा आर्गूमेंट होता है, कोई अपील करता है, तो उसमें भी बच्चे कुछ कुछ आके देख सकते हैं उसको भी, किस प्रकार लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, पैदा होने से लेके और जाने तक हमारे जो हक हैं, हवा, पानी, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क मिलनी चाहिए हमको, हमारा कानूनी हक है। हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ हमारा अधिकार बनता है। और अब तो हमने पंजाब के अंदर जो नया कानून लागू करवा दिया है कि कोई भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाती है और कितना भी बिल बाकी है, उसकी डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है, उसका आदेश करवा दिया। पंजाब इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, ये पहला स्टेट है। इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार तालियों से सारे स्वागत करें। तो आज जो आप यहाँ सीख के जा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप खरे उतरोगे इसमें, और आप किसी भी फील्ड में रहो, जहाँ भी काम करोगे, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखोगे। ऐसा नहीं जो किसी ने कुछ कर दिया तो बर्दाश्त कर लिया। नहीं, कहते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो आप भी एक अलग ढंग सीखने आए हो हमारे पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन में। मैं अपनी तरफ से, अपने कमीशन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। आप में से बच्चों ने जो सीखा इतने दिन से, कोई एक बच्चा हाथ उठा के बताए, बच्ची बताएगी कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या लगा उसमें से। हाथ उठाओ, कौन बताएगा? बोलना भी तो सीखो ना, बोलने में शर्माना नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, आपने कुछ सीखा? काशमा जी, आप कहाँ से आए? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी और बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से? हाँ जी। आप कितने दिन से आ रहे हैं? आपको रोहित सर भी सिखा रहे हैं, हमारे लेक्चर भी होता है। आपने क्या सीखा और आपको क्या डिफरेंस लग रहा है पहले में और आज सीखने के बाद? सर बेसिकली ह्यूमन राइट्स ना एक बहुत वाइड अप्रोच है जो इंडिविजुअल्स को इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आने से पहले हमें भी ह्यूमन राइट्स मतलब सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन आइडिया था कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन के राइट्स होते हैं। यहाँ आके वो कितना ज़्यादा वाइड हैं, इनफैक्ट हमारी डेथ के बाद भी वो हमारे साथ हैं, वो हमें यहाँ आके पता चला है। हमने एक्चुअल वर्किंग ऑफ कमीशन देखी है। दूसरा, जो एक एफिशिएंसी देखी है इस डिपार्टमेंट में, वो मैं हार्डली किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एक्सपेक्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत एफिशिएंसी है, क्राउड नहीं है, केसेस भी कम हैं। मतलब केसेस ज़्यादा है बट उनकी वो डिपेंडेंसी जो रहती है लेटेज, वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। काफ़ी कुछ है जो काफ़ी नया सीखा। सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ पे एक्सपोजर भी देखा, इतने सारे बच्चे हैं, टीम वर्क भी सीखा। ह्यूमन राइट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे ज़्यादा डिटेल में जिसके बारे में पढ़ा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा केसेस आएंगे और लोग इतने ज़्यादा अवेयर भी हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। अभी जैसा उन्होंने बताया कि हमने थियोरेटिकली क्या करा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोहित सर वाज वेरी हम्बल थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस। एंड ऑब्वियसली उन्होंने, जैसे आपने बोला कि जब लोग आते हैं अपने दुख बांटने के लिए तो उनको समझो, उनको सहानुभूति दो। एंड तो सबसे ज़्यादा मेनली मैंने आप सबसे यही सीखा कि लोगों के दुखों को एक्चुअली कैसे समझना है और उनके कैसे हल निकालने हैं। तो ये तो सबसे मेन पार्ट सीखा था आप सबसे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। याद रखोगे? याद रखेंगे। थैंक यू। देखिए, इतनी छोटी उम्र में आपको पता लग गया, नहीं बोलता लोगों को बुजुर्ग होने तक नहीं पता लगता। आप किसी ऑफिस में गए, ऑफिसर अंदर बैठा है, आप बाहर खड़े हैं, चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल कर रहा है, आपको नहीं पता। ऑफिस टाइम
तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। पुलिस को कॉल करिए आप सीधा कंट्रोल रूम में कि मैं एक नागरिक हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं इस ऑफिसर से मिलूं, और इस ऑफिसर का फर्ज बनता है, ये सरकारी ऑफिस लेके बैठे हैं, सरकारी गाड़ी लेके बैठे हैं, सरकारी घर लेके बैठे हैं, मोबाइल भी सरकारी है जिसे उठा नहीं रहे हैं और हमें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा करके देखना, आपके घर ना चल के आए कंसर्न ऑफिसर, तो चाहे हम ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका हक आपको पता होना चाहिए ना कि हमको कहाँ लेना है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी में बैठे हैं, 6 घंटे से बैठे हैं, 2-2 दिन से लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई? एक टाइम पीरियड फिक्स हो, पूछिए आप कितनी देर में हमारे को इलाज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हमारे को रेफर कर दीजिए आप। ये है आपका ह्यूमन राइट, आपको पता लगना चाहिए। आप अपनी आवाज़ को उठाना सीखिए। आप में से होकर बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बताइए बताइए शर्मा। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे एक चीज़ और सीखी, जैसे आप हमारे को जैसे पता था कि ह्यूमन राइट हमारे पे है काफ़ी, लेकिन कई लोग ना डरते हैं कि जैसे पुलिस के खिलाफ कोई जाता नहीं है जल्दी के, तो जो हमारा ये कमीशन है इसमें पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। तो सर ये चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर कि आपको ये पता है कि आपके जो राइट वायलेट हुए हैं तो आप पुलिस के खिलाफ भी जा सकते हो। वही सर, वही इसलिए तो सर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना लोगों को कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, हम सामने कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारे राइट्स हैं, हम उनको ले सकते हैं। बेसिक सर यही सीखा कि मतलब पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं हम लोग। यही नहीं, हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्ची को पेपर देने गए, एग्जाम देने गए, और उसको 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट पहले भी पहुंची, कहीं अंदर नहीं जाने देते। अभी हुआ एक लेटेस्ट केस, 15 मिनट में उसको अंदर ही जाना। वो बच्ची ने हमारे पास अपील करी, हमने एजुकेशन डायरेक्टर को एडवाइस भेजा अपना सुपरफॉर्मेंस लेके, तुरंत उन्होंने आगे नोटिस दिया, और इससे भी वहाँ से फ़ोन आ गया कि प्रिंसिपल जी ने कहा कि बच्ची को उठा रहे एग्जाम करा रहे हैं। उस बच्ची को अपने राइट्स पता लगे, उसके अंदर कितना जोश आ गया कि मैं कहाँ गई थी, मुझे फर्स्ट मिल गया। सवेरे बात करो, आपके मकान पे, आपके घर पे, आपकी जमीन पे, आपकी गाड़ी पे कोई कब्जा करना है, आपके राइट्स नहीं कर सकता। तो कोई नहीं सुनेगा तब ह्यूमन राइट कमीशन सुनेगा, ठीक है? सर सबसे अच्छी बात मेरे को, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विशव गब्बा है, मैं बसी पठाना फतेहगढ़ साहिब से हूँ सर। सर एज ए मैं एनजीओ वर्कर हूँ, जैसे मैं एनजीओ में वर्क भी कर रहा हूँ खुद। सर सबसे अच्छी बात मेरे को इसकी कमीशन की ये लगी, यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है सर। अगर हम ऐसे न्यूज़पेपर में देख रहे हैं या टीवी वगैरह में देखते हैं भी ऐसे हुआ, तो सबसे अच्छी बात ये लगी भी यहाँ पे खुद एक्शन लिया जाता है। कई बंदे बोलते नहीं है सर, वो डरते हैं थोड़ा बहुत भी, हाँ अगर हमने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की तो कल को हमारे साथ क्या होगा सर। वैसे न्यूज़ में जैसे आ जाता है ये हुआ, तो यहाँ पे सुओ मोटो एक्शन कॉग्निजेंस भी लिया जा रहा है सारे। ये सबसे अच्छी बात लगी सर। खिलाफ ही नहीं, आप किसी फेवर में भी ले सकते हैं। जैसे मैं नया आया था तो मैं सेक्टर 22 में रात को घूम रहा था, तो मैंने देखा कि लोग पटरी पे सो रहे हैं। चंडीगढ़ जैसा साफ सुथरा शहर हो, लोग बेचारे बिना कपड़े के, बिना छत के सो रहे हो, तो हमने सुमोटो लिया। तो यहाँ के जो कॉरपोरेशन के अधिकारी थे मेरे पास आए, फिर सोशल वेलफेयर के आए, कहने लगे जी 10-11 तो बने हुए हैं यहाँ पे नाइट शेल्टर। मैंने कहा 12 क्यों नहीं बन सकता? कहने लगे जी उससे 1 किलोमीटर आगे चले जाएँ वाशरूम में, क्यों चले जाएँ, वहाँ क्यों नहीं जा सकते हो? आफ्टर ऑल 5-6 तारीखों के बाद उन्होंने लिख के दिया हमें कि इस बार नवंबर में बना देंगे, आगे से उनको तकलीफ नहीं होगी। तो हमारी जीत हो गई नहीं होगी। ओके, जीते रहो। बहुत बहुत बधाई आपको, कोई मत क्या है। जय हे जय हे जय 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 हे।